Welcome students. Welcome to the lecture number 3 of chapter Strings in Python. In the previous classes we have learned that what is basically a string. A string is nothing else but the collection of characters enclosed within the single quotes or double quotes. Okay. And we have also learned that whenever we store a string in the memory, okay, then an index number scheme is also applied with that string, which begins from 0 to the positive side while moving from left to right, and while moving from right to left it begins from -1, -2 and so on. Okay. Along with that, then we have studied what are the basic various operations that can be performed on a string. Okay, and that's we have seen in the previous class, that what are the basic operations that can be performed on the string. And we have seen that the first operation that can be performed on the string is basically concatenation, and we know that the plus operator is used for performing the concatenation operation on the strings. Okay, and concatenation is basically joining the two or more strings. Now the next one is basically the replication, and the multiplication operator is basically used for the replication. Replication is basically the repetition of the string, and we know that when we write star symbol and a number with a particular string, then the string will get repeated to that specified number of times. Okay, suppose अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे hello डबल कोट्स में then *2, so अब क्या होगा कि hello word 2 times repeat हो जाएगा. So replication is basically the repetition. Then the membership operator can be used on the string, and we have two types of membership operators. The first one is in and the second one is the not in. Okay. Now the next one is basically the comparison. We have also seen these operators. We have various comparison operators with us. There are, that is greater than, equal to, less than, equal to and not equal to. Okay, so these are the names of some comparison operators with us. So the next string operation that we are going to study today is basically the string slicing. Slicing is basically one of the most important topic of Python, because this slicing concept is used in many types of data. Okay, this slicing concept is used in strings. After that we are going to study the list, tuples, dictionary. All these concepts use the power of slicing. Okay, so today we are going with the concept, starting with the concept of slicing first, right? So let's begin with the concept of slicing. First of all, I open the notepad, MS Paint, and I'm going to write the notes in this frame. Okay, so we have done 1, 2, 3, 4 operators, right? Okay, so the fifth operator that we are going to study is basically the string slicing. Okay, so the topic for today, the fifth operation that we are going to study with respect to the strings is basically string slicing. Okay, so slicing. So first of all, we see what is the definition of basically slicing. So slicing is basically used to retrieve a particular portion of a string from the given string. Okay, so the concept of slicing is used to obtain the particular portion of the string from the given string. ठीक है जी. Now what is basically the procedure, or what is the syntax for writing the slicing concept? So when we talk about the syntax of the slicing, in the syntax first we have to write the string name.
okay, whatever be the string name is. Then we have to put the square bracket. Then three parameters are used. First one is the start, stop and step. Okay, so these three values are used in case of slicing. Okay, so let us see an example and understand what is the basic purpose of these three options. Okay, suppose I take an example like if in the variable a I have taken data that is programs. Okay, सो ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने एक डेटा ले लिया, उसका नाम रखा प्रोग्राम्स. सो वी नो दैट जब ये प्रोग्राम्स को मेमोरी में जगह मिलेगी तो क्या होगा, दिस वेट. सो एक ब्लॉक्स बना देते हैं जैसे कि सो दैट हमें ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग के कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए हमारे लिए. और एक ऐसे मैं यहाँ पे ब्लॉक्स तैयार कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट जब ये मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं सारे अलग अलग हो रहे हैं और सबको इंडेक्स नंबर भी मिलेंगे ना. सो जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोज इंडेक्स नंबर्स ईजिली मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे ब्लॉक्स प्रिपेयर कर रहा हूँ. ठीक है, चलिए ब्लॉक्स मैंने प्रिपेयर कर दिया. और अब जब मैं ये डेटा एज ये भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सो ऑब्वियसली ये प्रोग्राम वर्ड जो है मेमोरी में स्टोर होगा. सो पी इसमें सपोज मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन जो है पी आ गया इसमें, जस्ट वेट. नाउ सेकंड पोजीशन में आर ओ जी आर ए एम एंड एस. ठीक है जी. सो ये डेटा हमारे मेमोरी में स्टोर हो गया. अच्छा, अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि एक अलाइसिंग एक इंडेक्सिंग स्कीम भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है. ठीक है, मेमोरी में तो सिर्फ आपका डेटा स्टोर होगा दैट इज़ प्रोग्राम्स, लेकिन डेटा को ईजिली एक्सेस करने के लिए एक इंडेक्स नंबरिंग की स्कीम भी हमें मिली हुई है. और अकॉर्डिंग टू दैट स्कीम जो मेमोरी में डेटा डला हुआ है उसको हम एक अपनी तरफ से पोजीशन नंबरिंग दे देते हैं. अच्छा, ये चीज़ याद रखना, मेमोरी में जब ये स्टोर हो रहा है वहाँ पे कोई 0 1 2 3 4 ऐसे पोजीशन नंबरिंग नहीं लगी हुई. ये सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए, हमारे इजी एक्सेस करने के लिए हमें एक इंडेक्स नंबरिंग की स्कीम दे रखी है. सो अकॉर्डिंग टू दैट द फर्स्ट पोजीशन विल गेट द इंडेक्स नंबर 0, सेकेंड इज 1, then 2, then 3, 4, 5, just wait, it's 5, okay, this one is 6 and then 7. Okay, so there is a positive index numbering also, and along with that I have also told you that there is a negative indexing also, right? So according to the negative indexing, this will get the value as -1. Okay, now it will get -2, then -3, okay, and then this one will get the -4 value. यहाँ पे -5, then -6, -7, -8, ठीक है जी. सो इस तरह से ये इंडेक्स नंबरिंग मिल रखी है यहाँ पे जो डेटा मौजूद है. ओके, सो ये हमारे पास इंडेक्सिंग हो गई. ठीक है, अब ज़रा स्लाइसिंग कंसेप्ट को देखते हैं कि अगर स्लाइसिंग कंसेप्ट हम लगाते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए तो किस वे में हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है. ठीक है, सो मैं ज़रा पाइथन को भी ओपन कर लेता हूँ अपना, और इसमें मैं एक वेरिएबल ए लेके उसमें सेम यही प्रोग्राम्स नाम की वैल्यू डलवाऊंगा. ठीक है, सो दैट जो हमारा आउटपुट निकलेगा उसको हम यहाँ साइड बाय साइड वेरीफाई भी कर सकेंगे कि वो आउटपुट क्यों आ रहा है हमारे पास. ठीक है,
सो सिंपल मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू, देन मैंने यहाँ पे प्रोग्राम्स, ठीक है, ये लिख लिया, एंटर मारा। सो ऑब्वियसली अब a के अंदर डेटा आ गया, दैट इज सॉरी स्मॉल a है ना, स्मॉल a के अंदर डेटा आ गया, दैट इज प्रोग्राम्स, ठीक है। अच्छा, अब हमें स्लाइसिंग के कंसेप्ट को यूज़ करना है। सो मैं अब लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो अगर मैं लिखा प्रिंट a, ब्रैकेट लगाता हूँ, एंड वी नो दैट फर्स्ट हमें स्टार्ट वैल्यू देनी होती है, देन स्टॉप वैल्यू, देन स्टेप वैल्यू। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया वैल्यू दैट इज 2 कोलन, एंड देन सपोज मान लो मैं देता हूँ 6 और बंद कर देता हूँ, ठीक है जी। सो 2:6 मैंने लिखा, और मैं जैसे एंटर मार रहा हूँ मेरे सामने यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, दैट इज OGRA। सो लेट अस अंडरस्टैंड ये OGRA आउटपुट कैसे आया हमारे पास। सो हमने वहाँ पे लिखा था दैट इज A:2:6, ठीक है जी। सो अब होता क्या है, एज पर द सिंटेक्स हमारे पास यहाँ पे जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली पहले हमें स्टार्ट वैल्यू देनी होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, देन कोलन, उसके बाद हमें स्टॉप वैल्यू देनी होती है, एंड स्टॉप वैल्यू इज 6 है। तो हमें समझ में आ गया है कि यार ये जो 2 दे रखा है दिस इज बेसिकली द स्टार्ट वैल्यू, ठीक है, और ये जो 6 है हमारे पास दिस इज बेसिकली द स्टॉप वैल्यू, ठीक है जी। वो स्टार्ट वैल्यू है और वो स्टॉप वैल्यू है। चलिए, आफ्टर दैट देर इज वन मोर थिंग गिवन, दैट इज स्टेप वैल्यू। अब होता क्या है, इफ़ यू हैव नॉट मेंशन द स्टेप वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हमने स्टेप वैल्यू लिखी नहीं है, इन दैट केस द सिस्टम विल टेक द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द स्टेप इज 1, ओके। सो उसने स्टेप वेरिएबल के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर रखी है, 1। इट मीन्स इफ़ यू हैव नॉट असाइंड द स्टेप वैल्यू देन द सिस्टम विल टेक इट 1 बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। सो अब होगा क्या यहाँ पे, 2 से 6 क्या मतलब है यहाँ पे कि अब ये देखो जो पोजीशन यहाँ से दे रखी है, इस पोजीशन से डेटा फैच करना शुरू करेगा और इस पोजीशन से एक कम तक चलेगा। हमेशा याद रखना कि जो स्टॉप वैल्यू है उससे एक कम तक चलेगा। सो इसका मतलब ये सेकंड पोजीशन से डेटा रिट्रीव करना शुरू करेगा और 6 से एक कम यानी 5 तक। सो सेकंड पोजीशन से इसने डेटा रिट्रीव करना शुरू किया और 6 से एक कम यानी कि 5 तक ये डेटा एक्सेस करता रहा। तो देखो पहला डेटा इसके पास क्या था, 1, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन इज़ 1, सो सॉरी स्टार्टिंग पोजीशन इज़ 2, तो फर्स्ट डेटा जो उसने एक्सेस किया दैट इज़ ऑफ सेकंड पोजीशन। फिर इफ एज यू नो दैट स्टेप वैल्यू तो गिवन नहीं है, सो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू इज़ 1, सो 2 + 1 इज़ 3, सो थर्ड पोजीशन का डेटा भी उसने ऑब्टेन किया। देन 3 + 1 इज़ 4, फोर्थ पोजीशन का डेटा भी आया उसमें। 4 + 1 इज़ 5, तो फिफ्थ पोजीशन का डेटा भी आया, बट फिफ्थ से आगे नहीं गया बिकॉज वी नो दैट कि जो भी स्टॉप वैल्यू दे रखी होती है we have to stop one step before it. So the value is 6, so we have to stop at 5. So ये 2 से लेकर 5 तक का पूरा डेटा आपको निकाल देगा। So जब ये 2 पोजीशन से लेकर 5 पोजीशन तक का डेटा निकालेगा, so obviously in that case you will get GRA. So OGRA, this is the output for you. Okay. So I hope आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये डेटा को किस वे में फैच करता है, ठीक है। अब सपोज मान लो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दोबारा से आता हूँ यहाँ पे, मैंने फिर वही लिखा प्रिंट A:2:6 सपोज आई हैव रिटन 2 ऑल्सो, ठीक है। मैंने यानी कि इस बार स्टेप वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी। सो लेट्स सी, जब ये स्टेप वैल्यू दी है मैंने 2, 6, 2, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आया और। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि ये और आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ए है और यहाँ ब्रैकेट में 2:6:2, दिस इज गिवन, ओके। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 और 6 से एक कम पे आके रुकेगा, ठीक है। और यहाँ स्टेप वैल्यू दे रखी है 2, इट मीन्स वो 2 का गैप देगा, ठीक है। सो फर्स्ट वो सेकंड पोजीशन का डेटा ऑब्टेन करेगा बिकॉज स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे रखी है, सेकंड। देन सेकंड के बाद कौन सी पोजीशन का डेटा आएगा, अब देखो स्टेप वैल्यू 2 है, सो इसका मतलब हर पोजीशन को ऑब्टेन करने के लिए 2+ होगा। सो इनिशियल पोजीशन इज 2, 2 + 2 इज 4 एंड 4 + 2 इज 6,
बट ऑब्वियसली 6 इज़ द लास्ट पॉइंट, तो हमने इससे एक पहले रुक जाना है, तो हम 6 को कंसिडर नहीं करेंगे. सो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस केस हमें सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन का डेटा रिट्रीव करना पड़ेगा. ओके, सो इफ वी लुक इन आवर स्ट्रिंग, तो बेसिकली सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन का डेटा क्या है? इन द सेकेंड पोजीशन वी हैव O with us and in the fourth position we have R. So that's why आप देख सकते हैं वहाँ पे आंसर में आपको क्या मिला? OR और मिला. So I hope you understand कि भाई ये किस तरह से आपको डेटा फैच करके दे रहा है. ठीक है जी. अच्छा, कुछ और केसेस इसके हम परफॉर्म करके देखते हैं. अब मैंने लिखा प्रिंट A. अब मैंने क्या करा, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो मेंशन नहीं करता. स्टार्टिंग वैल्यू के बाद हम कोलन लगाते थे, तो मैंने कोलन लगा दिया, बट मैंने स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो मेंशन नहीं करी. ठीक है. और सपोज उसके बाद मैं लिख देता हूँ 4 और मैं बंद कर देता हूँ. सो मैंने अब यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन नहीं करी है. ओके, सो व्हाट विल हैपन, जैसे मैंने एंटर मार रहा हूँ यहाँ पे PROG आ गया. सो व्हाट डज इट मीन, जैसे हमें पता है कि भैया जो बेसिकली स्टेप वैल्यू होती है, स्टेप की 1 जो है वो क्या है, वो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू. इट मीन्स अगर आपने स्टेप को मेंशन नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या वैल्यू ले लेगा? इट विल टेक द वैल्यू एज 1. ठीक है जी. ठीक उसी प्रकार से अगर आपने सपोज स्टार्ट वैल्यू मेंशन नहीं करी है, ठीक है, जैसे कि इसमें नहीं करी हमने, सो इट विल टेक द स्टार्ट वैल्यू एज 0 बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है जी. अगर आपने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है तो इट विल टेक द स्टार्ट वैल्यू एज 0. एंड व्हाट विल बी द स्टॉप वैल्यू, अगर आपने स्टॉप वैल्यू नहीं दी है, सो स्टॉप वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो भी इसकी लास्ट पोजीशन है वो हमारी क्या हो जाएगी? स्टेप वैल्यू. यानी कि अगर स्टॉप आपको नहीं दे रखा, सो इट विल गो टू अप टू एंड, सो इट विल मूव अप टू एंड. तो ये आखिर तक जाएगा हमारा. ठीक है, इट विल मूव अप टू एंड. अच्छा जी. अब चलिए ज़रा देखें, अगर हमने जो वहाँ पे लिखा था दैट इज़ A और ब्रैकेट में :4. ठीक है. सो अब ये A:4 लिखने पर क्या होगा हमारे पास? अब जैसे कि मैंने बोला कि हमने स्टार्ट वैल्यू तो दी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये A स्टार्ट वैल्यू क्या ले लेगा? इट विल टेक द स्टार्ट वैल्यू एज 0. अच्छा, स्टेप. और अच्छा, अब इसमें मैंने स्टॉप वैल्यू दे रखी है, बट मैंने कोई स्टेप वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू इज़ 1. तो फर्स्ट ये 0 पोजीशन का डेटा देगा, फिर 0 + 1 इज़ 1 पोजीशन का डेटा देगा, देन 1 + 1 इज़ 2 पोजीशन का डेटा देगा, देन 2 + 1 इज़ 3 पोजीशन का डेटा देगा, एंड 3 + 1 इज़ 4. बट हमें तो यहाँ स्टॉप 4 है ना, तो इट मीन्स हमें 4 से एक पहले रुक जाना है, तो ऑब्वियसली फोर्थ पोजीशन पर नहीं आएंगे, तो हम 0 से लेकर थर्ड पोजीशन तक का डेटा एक्सेस करेंगे. सो अब जब हम देखेंगे 0 से लेकर थर्ड पोजीशन तक डेटा क्या है, तो देखो 0 पोजीशन में क्या डला हुआ है? P, 1 पे R, 2 पे O और 3 पे G. तो 0 से 3 पोजीशन तक PROG. सो दैट्स वाई आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको PROG एज एन आउटपुट के तौर पे मिला है. ठीक है. अब मैं लिखता हूँ प्रिंट A ब्रैकेट, और सपोज मान लो इस बार मैंने लिख दिया 4 और कोलन, यानी कि इस बार मैंने जो स्टॉप वैल्यू है मेरी वो मैंने मेंशन नहीं करी है. मैंने स्टार्टिंग दे दी दैट इज़ 4, बट एंडिंग नहीं दी है. तो मैंने बताया था जब एंडिंग नहीं देते तो वो एंड तक पूरा एक्सट्रैक्ट करता है, तो यानी कि ये फोर्थ पोजीशन से लेकर एंड तक सारा एक्सट्रैक्ट कर लेगा. तो RAMS देख सकते हैं यहाँ पे हमने वहाँ पे क्या दिया है? A और 4 और कोलन लिख के बंद कर दिए. सो जैसे मैंने बताया कि अगर जब हम इस तरह से लिखते हैं तो वो फोर्थ पोजीशन से लेकर एंड तक जाता है. सो इट विल मूव फ्रॉम फोर्थ टू एंड. तो फोर्थ से लेकर एंड पोजीशन तक अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्थ पोजीशन में पड़ा हुआ R. सो ये देगा हमें RAMS रैम्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर वही आ रहा RAMS रैम्स. ठीक है. सो हमने ये इस तरह से लिख दिया. नाउ और वेरिएशंस हम इसकी देखते हैं कि सपोज इफ अगर मैंने ऐसे लिख दूँ प्रिंट A ब्रैकेट लगाया, कोलन लगाया और फिर बंद कर दिया. इट मीन्स ना तो मैंने स्टार्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ और ना ही मैं एंड वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ.
तो मैंने बताया था जब स्टार्ट वैल्यू नहीं लेते हम तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बिगिनस फ्रॉम ज़ीरो, और जब एंड वैल्यू नहीं लेते तो वो अप टू एंड तक एक्सट्रैक्ट करता है। तो इट मीन्स ये अब जीरो से लेकर एंड तक सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। सो लेट्स, जैसे मैंने एंटर मारा आप देख सकते हैं आपके पास सारा डेटा आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम कुछ और ऑप्शंस भी करते हैं। सपोज मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट ए, ब्रैकेट लगाया, और सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे -3 और ऐसे बन। अच्छा, अब क्या होगा, अब हमने -3 और स्टॉप वैल्यू नहीं मेंशन करी है। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे, एंटर मार के देखते हैं। पहले एंटर मारा, हमारे पास आ गया AMS। अब जरा आपने इसमें आ जाओ, माइनस वहाँ पे लिखा हुआ था मैंने दैट इज A, और उसके बाद मैंने लिखा -3 एंड देन कोलन, और फिर बंद कर दिया। सो अब एक चीज़ देखो, इसका मतलब -3 से स्टार्ट करना है, और जो सो ये A और -3 ऐसे दे रखा था, ठीक है ना। सो अब मुझे ये पता लग गया -3 है यहाँ पे। तो अब देखो, सो ये स्टार्ट करेगा -3 से, और एंड स्टॉप पोजीशन नहीं दे रही तो एंड तक पूरा एक्सेस करेगा। सो इट मीन्स ये हमें आउटपुट में क्या प्रोवाइड करेगा, देखिए -3 से लेकर एंड की तरह इधर एंड है ये। सो -3 से लेकर -1 तक का सारा डेटा दे देगा। सो -3 से लेकर अगर -1 तक अगर हम जाते हैं, सो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा AMS। और आप देख सकते हैं आपका जो वहाँ पे आउटपुट आया वो देखिए नीचे, आप देखो AMS ही लिखा हुआ है। ओके अब सपोज मान लो अगर मैं इसमें थोड़ी और वेरिएशन करता हूँ, सो अकॉर्डिंग टू दैट वेरिएशन अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट A :-3। सो अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, अब मैंने स्टार्टिंग वैल्यू तो दी नहीं है, एंडिंग वैल्यू दे दी -3। तो अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देता तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, इट विल टेक 0। तो इट मीन्स 0 से -3 पोजीशन तक का सारा डेटा एक्सेस हो जाएगा। एंटर मारते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा है PROGR। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि 0 से लेकर -3 पोजीशन तक का सारा डेटा। तो देखो -3, 0 यहाँ से स्टार्ट हो गया, और 0 जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो -3 कौन से पोजीशन पे आकर रुक रहा है, यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर दे रखा ना -3 यहाँ पे आ गया, और ये 0 नीचे आ गया। तो 0 से -3 निकाल के देगा तो यहाँ पे PROGRA। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट आया है वो कुछ है हमारे पास, दैट इज प्रॉप। अच्छा, अब एक चीज़, जैसे -3 है ना, तो जैसे एंड वैल्यू जो दे रखी तो उससे एक कम तक जाता है ना ये। सो ये ऑब्वियसली 0 से लेकर -3 से एक कम तक जाएगा, यानी कि ये 4 तक ही एक्सेस करेगा, -4 तक। ठीक है, क्योंकि हमने यही देखा था ना कि जो भी हमारी एंड स्टॉप पोजीशन होती है उससे एक पहले ही रुकता है, एक स्टेप पहले रुक जाता है। तो जब हमारी 0 से स्टार्ट है और स्टॉप पोजीशन -3 दे रहेगा तो -3 से एक स्टेप पहले रुक जाएगा, दैट इज -4 पे रुक जाएगा। तो PROGR, जैसे यहाँ पे PROGR दे रखा है आपका। ठीक है जी। सो इस तरह से अगर आपको दे रखा है। अच्छा, अब हमने कहा कि क्या हम उल्टा भी प्रिंट करके देख सकते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम्स को अगर मुझे उल्टा प्रिंट करना हो तो क्या कुछ हो सकता है इसके अंदर क्या हमारे पास। अब देखो क्या है इसको एक्सेस करने का तरीका। अगर मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे प्रिंट A, मुझे -1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, मुझे कहाँ से करना है स्टार्ट, -1 से स्टार्ट करना है, कोलन लिख दिया मैंने। अच्छा, मान लो मैं स्टॉप वैल्यू नहीं देता, लेकिन यहाँ पे स्टेप वैल्यू में -1 दे रहा हूँ। अब देखते हैं हमारे सामने क्या आंसर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पूरा डेटा रिवर्स्ड हो गया। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि जब हमने -1 इंडेक्स वैल्यू दे दी, स्टेप वैल्यू दे दी, तो वो -1 से स्टार्ट हुआ, फिर -1 में -1 किया, -2 हो गया, फिर -2 -1 -3, तो वो इस वे में इधर मूव करने लग गया हमारे पास। ठीक है जी। सो अगर आप नेगेटिव इंडेक्स दे देंगे तो वो उल्टी डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो ये दिस इज़ अ एग्जांपल कि अगर आपने
जो स्ट्रिंग है अगर उसको रिवर्स ऑर्डर में अगर पढ़ना है तो आप इस तरह से उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये जितने भी हमने इसमें ये सारे ऑप्शंस पढ़े हैं, इन सारे ऑप्शंस को आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। ये तो सिंपल है कि हमने ए इज इक्वल टू प्रोग्राम्स करा, दैट्स इट। और उसके बाद ही जितने भी मैंने स्लाइसिंग के आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरी एग्जांपल ऑफ स्लाइसिंग। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिए, हमारे जो 5 ऑपरेशंस थे वो हमने पढ़ लिए। आई होप आपको ये समझ में भी आ गए होंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे एक बात को हमें समझना है, दैट इज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। नाउ अब यहाँ पे एक वर्ड आता है म्यूटेबल और दूसरा वर्ड आता है इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है कि जिस डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, दैट वी कॉल्ड एज द म्यूटेबल, और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वी कॉल इट एज इम्यूटेबल। ठीक है, सो इट मीन्स का इस स्ट्रिंग इज म्यूटेबल का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द कंटेंट, ठीक है, it means that the content of the string cannot be changed, ठीक है, the content of the string cannot be changed after it is created। ठीक है जी, it means कि एक बार जब string बन जाती है तो हम उसके किसी भी डेटा को चेंज नहीं कर सकते। एक्सेस करना है कर लीजिए, लेकिन यू कैनॉट चेंज द डेटा। अब सपोज इस बात को मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक डेटा ले लेता हूँ, जैसे वही अपना सिंपल प्रोग्राम्स हैं। जैसे मैं अभी कुछ और डेटा लेता हूँ, जैसे मैंने मान लो ए इज इक्वल टू ले लिया ट्रायंगल। ठीक है, मैंने ये डेटा ले लिया। अच्छा, अब सपोज मैं अगर इसकी 4th पोजीशन का डेटा देखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ प्रिंट, ये हो गया प्रिंट ए, और कौन सी पोजीशन, 4th पोजीशन बोली है ना। तो किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन का डेटा अगर आपको देखना है तो यू नो कि भाई आपको स्ट्रिंग का नाम लिखना है, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको पोजीशन नंबर लिखनी है, दैट्स इट। सो आ गया मेरे पास उस पोजीशन का डेटा। ठीक है, ये हमने काम पिछली क्लास में भी देखा हुआ है कि हाँ भी इफ़ यू वांट टू एक्सेस एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग, तो आप सीधा उसका पोजीशन नंबर लिख के भी आप एक्सेस कर सकते हो। बट अगर मान लो मैं कहूँ कि यार 4th पोजीशन को मैं एक्सेस तो कर रहा हूँ, बट क्या मैं 4th पोजीशन के कंटेंट को चेंज कर सकता हूँ? मतलब अगर मैं बोलूँ कि भैया A4 में, यानी कि 4th पोजीशन के अंदर जहाँ n था, इफ आई से कि भैया वहाँ पे P डाल दूँ तो A4 इज इक्वल टू P। सो लेट्स सी, जब हम इस पर क्लिक एंटर मारेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास एरर आ गई। अब वाई एरर, ये जो लाइन लिखी है मैंने A4 इज इक्वल टू P, दिस इज अ एरर। और वो कह रहा है कि str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए उसमें असाइनमेंट अलाउड नहीं है। इट मीन्स दैट पाइथन डज नॉट अलाउ द प्रोग्रामर टू चेंज अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, सो वो बेसिकली जैसे कि हमने देखा कि 4th पोजीशन पे हमारे पास n था और हम n को किससे रिप्लेस करने की बात कर रहे थे, p से। सो जैसे हमने इस काम को अटेम्प्ट किया तो हमारे सामने एरर आ गया। सो इट मीन्स स्ट्रिंग जब एक बार बन जाता है तो वी कैन नॉट चेंज इट्स कंटेंट। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि भैया क्या स्ट्रिंग म्यूटेबल होते हैं या इम्यूटेबल होते हैं। सो द आंसर इज दैट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, विच मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट इज क्रिएटेड। तो एक बार जब वो क्रिएट हो जाएगा तो उस कंटेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, नाउ आफ्टर दैट अब हमें कुछ और टॉपिक भी पढ़ने हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, सो उन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना जो भी मैंने आपको कराया है स्लाइसिंग के कंसेप्ट को, उसमें आप अपनी तरह से भी कुछ नए नए नंबर्स, नए नए फिगर्स डाल के आप उसको टेस्ट करके देखिए दैट व्हाट विल बी द आंसर यू आर गेटिंग। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।